Hello students, myself Komal. So in the previous video we have at exercise 1.1 and we have completed example number 2, 3 and 4, and in this video we are going to have exercise 1.1 example number 5 and our new topic which is fundamental theorem of arithmetic. So let's start it. Example number 5 says, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, so in the previous video we have discussed about the square, and in this video we are having a cube. Okay, so let's just start. Here we are having, ओके सो लेट जस्ट स्टार्ट विथ, यहाँ पे देखो 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो उसको हम b की जगह पे 9 नहीं लेंगे, हम b की जगह पे क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि ये सारे टर्म्स वो है जो आफ्टर क्यूब हमें मिले हैं. ठीक है, सो क्यूब होने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई है. सो फॉर दैट वी आर टेकिंग 3. सो लेट a बी एनी इंटीजर, any positive integer and take b is equals to 3. so उससे क्या होगा, जो रिमाइंडर है दैट इज r, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore r is equals to 0, 1 and 2 because 0 less than r less than 3. okay, so here the a can be represented as 3q plus r, therefore it is a is equals to 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. okay, so here we are having three cases, उसको हम individually देखेंगे. so case number 1 is a equals to 3q, case 1 that is a is equals to 3q. यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका क्यूब करना है. so let's just doing the cube. so यहाँ पे ये हो जाएगा a क्यूब, this is 3q क्यूब which is equals to 27q क्यूब. so 27 can be represented as 9 into 3q क्यूब. so 3q क्यूब को मैं 9m लिख सकती हूँ, where m is any integer, where m is an integer such that m is equals to 3q cube. okay, so ये हो गया हमारा एक फॉर्म. let's just take the second case for which a is equals to 3q plus 1. हम क्या करेंगे, अभी उसका भी क्यूब करेंगे, which is a cube is equals to 3q plus 1 whole cube. okay, so let's just start doing a plus b whole cube वाला फॉर्मूला, मतलब आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे. so which convert in a cube is equals to 27a cube plus 27a square plus 9 क्यूब, सब में क्यू आएगा, प्लस 1. ओके, नाउ वी कैन टेक आउट 9 कॉमन, इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल सकते हैं. सो 9 कॉमन आ गया, सो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1. ओके, सो इसको अगर हम m सपोज कर लेते हैं देन इट विल बी 9m प्लस 1, where m is integer, where m is an integer such that m is equals to 3q cube plus 3q square plus q. okay, now the next case, that is third case, case number 3, where a is equals to 3q plus 2. yes, now we have to do the cube again. so this is a cube is equals to 3q plus 2 cube. वापस हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है. so this is 27q cube plus 54q square
plus 36q plus 8. Okay, so now we can take out 9 common. 9 कॉमन निकाल सकते हैं. Then we are having 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. Now again we can take this as m. So this is 9m plus 8, where m is an integer. M is an integer such that m is equals to 3q cube plus 6q square plus 4q. Okay, so therefore we can say the cube of any positive integers can be represented as 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, now move on to next. Our topic will be the fundamental theorem of arithmetic. Okay, for this we are having a statement. So let's just try to understand what the statement try to say us. So the statement goes like, every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, so let's just write every composite number can be expressed as a product of primes. ओके, मतलब हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है, जो प्राइम के अलावा के सारे नंबर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द कंपोजिट नंबर्स. सो अरिथमेटिक ऐसा बोलता है कि every composite number can be expressed as a product of prime numbers. So let's just take an example. If we are having a number (105), okay, so 105 can be represented as 3 into 5 into 7. Yes, दिस इज अ कंपोजिट नंबर ना, प्राइम नंबर नहीं है ये. इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. 105 कैन बी 15 7 और उसके 5 3 मतलब ऐसे फैक्टर्स बन सकते हैं. सो 105 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर को हम 3 into 5 into 7, सो दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स. सो अरिथमेटिक जो बोलता है विच इज अ ट्रू, कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर विच वी आर हैविंग एग्जांपल नंबर 5, in which we are having, consider the numbers 4:n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4:n ends with digit 0. Okay, अगर 4:n का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 4 5 20 होता है, तभी हमें को लास्ट डिजिट 0 मिलता है. ठीक है, बट यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम. अगर 4 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ 2 into 2n. 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 4:n को. 2 का पावर स्क्वायर और उसका n पावर, मतलब ऐसे 4 को हमने रिप्रेजेंट किया स्क्वायर पे और ये हो गया उसका n पावर. तो ये किसका फैक्टराइजेशन चल रहा है? 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो 4 2 तो 8 हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट हमेशा 8 ही आएगा.
ओके जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एंड डिजिट क्या आएगा, हमेशा 8 ही आएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल कि उसका लास्ट डिजिट क्या आए, 0 आए. सो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन की है और उसको टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखा गया है, तो आप उसमें से देख के एक बार पढ़ लेना. बस यही कॉन्सेप्ट है. अगर हमें उसका इफ एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n का कोई एक पावर ऐसा होना चाहिए जहां पे 4:n एंड्स विद द डिजिट 0. तो अगर 4 का कोई पावर है तो वो 4 5 20 होना चाहिए, मतलब वो 5 का ही कोई टर्म होना चाहिए. ठीक है, बट 4 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 का स्क्वायर. सो 2 के कोई भी पार्ट में, सो द ओनली प्राइम नंबर विच फैक्टराइज इज 2. सो the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4:n. मतलब यहाँ पे कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता प्राइम फैक्टर में, मतलब वहाँ पे कोई 5 आ ही नहीं सकता. ओके, सो दैट्स वाई, so there is no natural number n for which 4:n ends with the 0 digit. Okay, now our next topic will be example number 6, in which we are having find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. Okay, so यहाँ पे देखो हम पहले 6 के फैक्टर्स लिख देते हैं. 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 and 3, बोथ आर प्राइम फैक्टर्स. ओके, 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं. 20 मस्ट बी 4 into 5, बट 4 इज द कंपोजिट नंबर, तो 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 into 2 into 5. ओके, तो ये होगा 2 square into 5. तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 620. LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सारे वैल्यूज जो सबसे हाईएस्ट पावर में है वो LCM में जाएंगे. तो 2 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 3 भी आएगा और 5 भी आएगा. सो दिस विल बी 4 into 15, 15 4 जा 60, तो LCM हो जाएगा यहाँ पे 60. एंड HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 and 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, मतलब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एलिमेंट, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में जो कॉमन होगा उसका भी कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 and 2 square, पर उसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 2 ओनली, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 itself. ओके, नाउ वी आर हैविंग अ मोर important result which says for any two positive integers, for any two positive integers A and B, HCF of AB into LCM of AB is equals to A into B. ठीक है, मतलब कोई भी फैक्टर का LCM, दो फैक्टर का LCM और उसका HCF, दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो वही मल्टीप्लिकेशन होगा जब वो नंबर को हम खुद मल्टीप्लाई करेंगे. जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इन दोनों नंबर को A हो जाएगा हमारा 6, B हो जाएगा हमारा 20, तो A इंटू बी होता है 6 2 12, दैट इज 120. ठीक है, और HCF इंटू LCM, HCF कितना आया था इसका 2, LCM कितना आया है 60, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वी आर हैविंग 120. सो दिस मस्ट बी द ट्रू रिजल्ट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of AB into LCM of AB is equals to A into B. Okay, now let's just move on to example number 7, in which we are having find the HCF of 96 and 405. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 96 के फैक्टर्स लिखेंगे, 405 के फैक्टर्स लिखेंगे, then we are going to find the LCM of this particular two. Okay, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसका फैक्टर
फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, सो ये आपको होमवर्क में करना है आज का, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। ठीक है, सो डू ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल and we will discuss this particular example in next video. Till then, thank you.